جی آج پھر سے خداوند کی شکر گزاری ہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر ایمینول طاہر صاحب نے جرمایہ ٹی وی پر مدعو کیا ہے تاکہ میں خدا کا کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جرمایہ ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اور ان کے لیے خداوند سے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں تاکہ وہ اسی طرح اپنے اس چینل کے وسیلہ سے اپنے لوگوں میں، خدا کے لوگوں میں خدا کی آواز کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے پہنچا سکیں۔ خداوند ان کو بڑی برکت دے اس مقصد کے لیے۔ آئیے آج ہم دیکھیں گے، آج کا میرا جو کلام کا موضوع ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا کن کن وسیلوں سے ہم سے وہ بات کرتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ خدا ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، پالس رسول کا خط ہے 2 تیموتھیوس اور اس کا 3 باب اور 16ویں آیت اور 17ویں آیت، 2 آیتیں ہم آج خدا کے کلام میں سے جیسے مرقوم ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا کے بندہ پالس جس کی 80% لائف جو ہے وہ قید و بند میں گزری ہے، اور لیکن اس نے خدا کے کلام کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کی خوشخبری کو پھیلاتا رہا، ہم تک پہنچاتا رہا۔ آج بھی ہم اس کی لکھے ہوئے خطوط میں سے 2 تیموتھیوس کے نام اس کا 3 باب اور 17ویں آیت، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دیکھیے اس میں واضح طور پر پالس فرما رہا ہے کہ ہر ایک صحیفہ، ہر ایک بات جو ہماری زندگی میں آج موجود ہے اور نہیں ہے، وہ کہاں سے ہے؟ خدا کے کلام میں سے۔ ہم اس دنیا پر رہتے ہوئے ان چیزوں کے پیچھے، ان باتوں کے پیچھے، ان بدعتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان ضروریات کے پیچھے ہمارے توجہ، ہمارے مرکوز، ہماری زندگیاں ہیں جو فانی ہیں۔ ہمیں لفانی زندگی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور وہ لفانی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے وعدہ فرمایا ہے، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم کے لیے بھی۔ ہم آج دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں، اس میں ہم بہت ساری ایسی باتیں سیکھ رہے ہیں جو ہمیں محبت سے ہٹاتی ہیں، جو ہمیں نفرت کی طرف لے جاتی ہیں، جو ہمیں عداوتیں پیدا کرنے والی تعلیم کو ہم اپنی زندگیوں میں عروج پر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس تعلیم پر غور کرنا ہے جو ہمیں اصلاح کرنے میں، جو ہمیں راست بازی سکھانے میں، جو ہماری زندگیوں کی تربیت کرنے میں، جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں ہمیں وہ چیزیں بتاتی ہے جس میں ہمیں فائدہ ہے۔ آج ہم ایسی تعلیمات کے پیچھے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ آج ہے، کل نہیں ہے۔ آپ خدا کے زبور دیکھ لیں، زبور سے آپ کو جو راحت ملتی ہے وہ آج کے نئے گیتوں میں ہمیں راحت نہیں ملتی۔ وہ 1 مہینہ چلتے ہیں، 2 مہینے چلتے ہیں، 3 مہینے چلتے ہیں، اس کے بعد ختم، پھر نیا گیت۔ لیکن زبور خدا کا جو کلام ہے، جو اس کا صحیفہ ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ زندگی کو جب بھی ہم پڑھیں، جب بھی ہماری نسلیں جو ہے نا اس زبوروں کے وسیلہ سے راحت انگیز اطمینان اور تسلی کی طرف جا رہی ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کا کلام جو مختلف حالات اور واقعات پر بہت سے یسوع مسیح نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ کیا دی ہیں جی؟ بہت سے حالات پر، مختلف حالات پر، مشکل حالات پر، آسان حالات پر، محبت والے حالات پر، اور ہمیں نزدیک کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرنے والے حالات پر بہت ساری تعلیمات دی ہیں ہماری زندگی کو روحانی بنانے کے لیے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں ہر ایک کا توبہ تک پہنچنے کی نوبت دیتا ہوں، پہنچنے کی نوبت کا وقت دے رہا ہے، ہمیں تربیت دے رہا ہے کہ توبہ کر لے، آج بھی توبہ کر لے۔
लेकिन हम इस दुनिया के झंझटों में, इस दुनिया के लालचों में, उन चीज़ों में पड़े हुए हैं जो हमें सिर्फ इस दुनिया पर राहत देती हैं, खुदा की मिरास की राहत, खुदा की मिरास की तरबियत नहीं दे रही, उसकी तरफ लगे हुए हैं। आइए इंसानियत के लिए एक मिसाली ज़िंदगी नुमाइंदगी करते हैं। इंसानी ज़िंदगी के लिए उसकी मिसाली नुमाइंदगी कर रहे हैं। खुदा की तालीम, खुदा की तरबियत, खुदा के सहाइफ जो हमें इंसानी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ मिसाली बनाने के लिए नुमाइंदगी करते हैं। यीशु ने भी जो हालात और तालीमात दी हैं उनमें मोहब्बत, मुआफ़ी करने की अहमियत और इंसानों के दरमियान आपस में मेल मिलाप को बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। कह दिए जी, आपस में मिलने को, आपस में रूहानी महफ़िलें सजाने की हमें तरबियत और तालीमात को हमारे दरमियान में रखा है। चंद इस वक्त में हम देखेंगे कि खुदा का कलाम सबसे पहले हमें क्या फरमाता है। वो कहता है मोहब्बत। उसके लिए यूहन्ना 13:34 हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और 34वीं आयत। यूहन्ना उसका चैप्टर नंबर 13 और उसकी वर्स है 34। कलाम में यूँ मरकूम है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। गौर कीजिएगा नाज़रीन, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म दे रहा हूँ। हमारे पास पहले जो हुक्म हैं, जो मखसूस किए गए हैं, जो बनी इसराइल को दिए गए थे, वो है 10 हुक्म। और मैं हमेशा जब भी मैं अपने चर्च में मैसेज देता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अपने नौजवान बच्चों को, जो बच्चा हम इस दुनिया पर लेकर आए हैं, उन्हें 10 हुक्म ऐसे उनकी ज़िंदगियों में ले आएँ ताकि वो उन पर अमल करते हुए कभी भी खुदा की नाफरमानी ना कर सके, खुदा की तालीमात से ना हट सके, खुदा की तरबियत जो हमें दी जा रही है। और सबसे ज़्यादा उस तरबियत में क्या है? तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे तो क्या होगा? हमें कोई बुरा कह सकता है? कोई बुरा नहीं कहेगा। तो जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो हर एक जानेगा, हमारे रिश्तेदार भी जानेंगे, इर्द गिर्द के लोग भी जानेंगे, दोस्त अहबाब जानेंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ये जायदाद पर लड़ते रहते हैं, ये चीज़ों पर लड़ते रहते हैं, ये एक दूसरे को छीना झपटी में लगे रहे हैं। खुदा की तालीम ये नहीं है। फिर हम खुदा के शागिर्द भी नहीं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां भी नहीं हैं, वो हम उसकी मिरास के हिस्सेदार भी नहीं हैं। यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे। सब का मतलब है हर एक जानेगा, जो आपके नज़दीक दूर है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका दोस्त है, कोई भी है, वो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये मेरे किसके लफ्ज़? यीशु के शागिर्द हैं। अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो हम कहलाएंगे यीशु के शागिर्द। और ये उसका पहला हुक्म है और नया हुक्म है उसका। यीशु का नया हुक्म है कि आपस में मोहब्बत रखो। जो मोहब्बत मैंने तुमसे रखी है, उसने क्या मोहब्बत रखी कि सलीब पर अपनी जान दे दी। खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। अज़ल से उसने कहा ज़बा किया हुआ बरा, अज़ल से पहले ही उसने सोच लिया हुआ था। आज हमारी ज़िंदगियों में पहले से जो मोहब्बत पाई जाती थी वो नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया है। जब हमने उस हुक्म को, उस मोहब्बत को जो अज़ल से हमारे दरमियान में मौजूद थी, उसको हमने छोड़ दिया तो क्या हुआ? हम तरह तरह की बिदतों में पड़ गए हैं, हम तरह तरह के लालचों में पड़ गए हैं, हमारी ज़िंदगियां बेकार हो चुकी हैं, हम खौफ में हैं, हम बीमारियों में हैं, तरह तरह की तकालीफ में हैं। हम अपना रुपया पैसा जो हम कमाते हैं हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत पर बहुत ज़्यादा पौलुस भी कहता है, मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जाँच हूँ, अगर मोहब्बत नहीं रखता तो
अगर मोहब्बत नहीं रखता तो आप खाली बर्तन हैं। मोहब्बत वाले घर में जो है वो क्या होता है जी, रश होता है। मोहब्बत वाले घर में लोग होते हैं, मोहब्बत वाले घर में रिश्ते होते हैं, मोहब्बत वाले घर में औलाद होती है, मोहब्बत वाले घर में अनाज होता है, मोहब्बत वाले घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि वो मोहब्बत से हर एक चीज़ को डील कर रहा होता है। इसलिए मेरे चीज़ों, हमें भी खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा की तालीमात के मुताबिक अपने दरमियान में मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। इसीलिए खुदा का कलाम भी यूहन्ना रसूल की मार्फत हमें फरमा रहा है कि इसका मतलब इंसानों को एक दूसरे से गर्ज मोहब्बत करनी चाहिए, बेगर्ज मोहब्बत करनी चाहिए। कोई गर्ज ना हो, कोई लालच ना हो, कोई एक दूसरे को हम गिराने की या एक दूसरे को नीचा दिखाने का गर्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसी मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत हर एक चीज़ सह लेती है, हर बात बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत नहीं है तो हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े हैं। आगे देखिएगा माफ़ी का दर्स हमें खुदा कैसे बुला रहा है, कैसे हमसे बात करता है। अगर हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे तो खुदा हमें अपना शागिर्द, हमें अपना बेटा और हमें अपनी बेटी कहलाएगा, हमें अपनी मेरास कहलाएगा। जब तक हम मुआफ़ नहीं करेंगे, उसमें बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, अगर तुम अपने भाई से नाराज़ हो तो तुम्हें पहले इससे सुलह करनी चाहिए। तुम अपने भाई से नाराज़ हो, जिसमें मोहब्बत है, जो इकट्ठा रहता है वो भाई है। अगर आप एक माँ के बतन से हैं, भाई हैं। अगर आप मोहब्बत में हैं तो आप ज़्यादा भाई के करीब हैं। ये दोस्त पैदा होता है मोहब्बत दिखाने के लिए, लेकिन भाई जो है वो आपको ज़रूरत पर काम है। खुदा का कलाम, खुदा की तरबियत हमें सिखा रही है कि अगर हम उसकी तालीम पर अमल करेंगे तो हमें मुआफ़ करने वाला बनना चाहिए। मत्ती उसका 5वां बाब और 24वीं आयत में, मत्ती रसूल की इंजील है उसका 5वां बाब और 24वीं आयत, उसमें देखें कि हमें मुआफ़ी का दर्स क्या दिया जा रहा है। हम देखेंगे 24वीं आयत, तू वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर मैं अपनी नज़र गुजराना। अगर हम कोई खुशी कर रहे हैं, आज देखिए अभी हम क्रिसमस के सीज़न से निकले हैं, बहुत सारी खुशियाँ, और मेरा यकीन है, मैं ईमान के साथ कहता हूँ, आप भी सुन लें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिएगा कि आपने इस क्रिसमस पर कितने लोगों के साथ सुलूक की है, कितने लोगों को मुआफ़ किया है, अपने रिश्तेदारों को कहाँ तक आप लेकर आए हैं। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप खुदा की क्रिसमस को मनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने हकीकी क्रिसमस मनाया है तो आपने ज़रूर अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी होगी, उन्हें मनाया होगा, जो कोई भी नाराज़ है आपसे। आज हम उनकी परवाह किए बगैर हम खुदा के पैदा होने की खुशी को मना रहे हैं। किसकी? यीशु के पैदा होने की खुशी को मना रहे हैं, जिसने सलीब पर अपनी जान दी हमारे लिए। हमारा ये ईमान है कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मुआफ़ नहीं करेंगे, यहाँ पर खुदा का हुक्म भी यही है कि जाकर पहले तो अपनी भाई को मना, उसके साथ सुलह कर, उसके साथ मिलाप कर, तो फिर अपनी शुक्रगुजारियों को गुजरान, ताकि मैं तुझे जानूं कि तू मेरा शागिर्द है, लोग तुझे जाने कि तू उसका शागिर्द है। आगे वो क्या कहता है? दुआ कलाम में लिखा है कि सच्चाई, तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हर एक इंसान जो आज सच से नज़रें चुराए हुए है, उसके लिए है। सच्चाई क्या है? एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मिलाप, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को आगे, किसी को ना चीज़ छोटा ना जाने। खुदा का कलाम भी कहता है, उसके शागिर्दों में भी ये बहस हुई थी कि हम में से बड़ा कौन है, और उसने क्या फरमाया कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। और जब हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं तो फिर खुदा का कलाम हम में मौजूद है, खुदा की बातें हमें बताती हैं। हम देखते हैं पौलुस रसूल की तालीमात को कि वो हमें सच्चाई की पहचान कराता है। खुदा का कलाम क्या कहता है जी? सच्चाई की पहचान। खुदा का कलाम क्या कहता है? तंबीह करता है, गलतियों की निशानदेही करता है, इस्लाह करता है, गलतियों को दुरुस्त करता है,
रास्तबाजी में तरबियत देता है, नेक ज़िंदगी गुजारने की राह दिखाता है, नेक ज़िंदगी गुजारने की राह। और इबादत, नेक ज़िंदगी हम खुदा की इबादत सच्चाई के साथ बेगर्ज होकर, मोहब्बत में, खौफ में, डर में और उसके फ़ज़ल में, फ़ज़ल हमें जो अज़्ज़त से मिला है उसके वसीला से हम अगर उसकी इबादत करते हैं तो हम क्या होंगे जी, पाक साफ़ होंगे, हम इस्लाहकार होंगे, हमारे दरमियान में गलतियां नहीं होंगी, हम एक दूसरे की गलतियों को दुरुस्त करेंगे बजाय उनकी गलतियों पर उनको डांटेंगे। खुदा का कलाम तंबी कहता है कि निशानदही कर कर उस पर तंबी करें। आज हम अपनी औलाद को तंबी नहीं कर रहे, आज हम अपनी औलादों को बेखौफ छोड़े हुए हैं, उनको खुदा के कलाम की तरफ नहीं ला रहे, कलाम की तरबियत की तरफ नहीं ला रहे कि कलाम हमें क्या फरमा रहा है, यीशु हमें क्या फरमा रहा है, यीशु ने कुर्बानी क्यों दी, यीशु ने अपने आप को सलीब पर क्यों चढ़ाया। हम इस बात पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। आज नौजवान नस्ल अपनी गलतियों को छुपाए फिर रही है, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों के साथ अपनी गलतियों पर पर्दा डाले हुए है और उनको कोई तंबी करने वाला नहीं है। तालीम ने सच्चाई को नहीं पहचान रही कि सच क्या है। अगर हम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। आज हम झूठ बोलकर बहुत सारे काम करते हैं। कर्ज हम पे कर्ज क्यों है? क्योंकि हम सच्चाई से वाकिफ़ ही नहीं हैं। सच्चाई क्या है? हमारे पास जो कुछ है हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हमारे पास जो कुछ है हम उसको बयान करें। इससे हम दूर हट गए हैं और हम झूठ का जो है ना दामन थामे हुए हैं। उस दामन के वसीला से हमें सच्चाई नज़र नहीं आती, हमारी सच्चाई किसी को पर ज़ाहिर नहीं हो रही। खुदा का कलाम जो नूर है, जो रोशनी है, वो कहता है कि तुम मेरी डालियाँ हो, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। डालियाँ उसी के साथ कायम रहती हैं जो उसके साथ जुड़ा हो, जो उसके साथ जुड़ा हो। तो जब हम खुदा के कलाम के साथ जुड़ेंगे नहीं तो हम उसकी डालियाँ भी नहीं होंगे, और जब हम उसकी डालियाँ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? आग में झोंके जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे। हमें मेरे अज़ीज़ों इस बात पर गौर करना है कि हम है क्या। हम ज़रूर मसीही घरानों में पैदा हुए और मसीह हैं, लेकिन मसीहत की कमी हमें ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि कमी है या नहीं है। हकीकत जाने खुदा की, खुदा के पास आने की कोशिश करें, क्योंकि वो कहता है जो कोई ईमान के साथ, जो कि परहेजगारी के साथ मेरे पास आने की कोशिश करेगा, तौबा करेगा, उस पर इकरार करेगा, तो मैं उसके नज़दीक आ जाऊँगा। हमें ज़रूरत है, हमें खुदा के नज़दीक जाने की और खुदा को अपने नज़दीक लाने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगियों को इबादत की तरफ लेके जाइएगा, इबादत में महू कीजिए, दुआ में और उसको धन्यवाद कहने, उसकी तमजीद करने में आगे, ताकि हम खुदा के नज़दीक होते जाएं और खुदा हमारे नज़दीक होकर उन बीमारियों से आज़ाद करे जिनसे हम खुदा से बहुत दूर हैं, जो हमें उन ज़रूरतों से हम पीछे हट जाएं जिन्होंने हमें खुदा से दूर किया हुआ है। खुदा का कलाम जो हमें हकीकत में उन चीज़ों की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है जो खुदा ने हमें देने की किया। अब आदम और हवा को देख लें, कितना खूबसूरत बाग, हर एक चीज़ उनको दी गई और खुदा खुद उनके साथ आकर हम कलाम होता था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि खुदा ने इंसान को फ्री विल दी है, आज़ाद मर्ज़ी दी है। उस आज़ाद मर्ज़ी को जाने कि हमने कैसे गुजारनी है। जब उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी का ध्यान किया, उस पर गौर किया और इब्लीस ने आकर उनको उभारा, तो उन्होंने वो अमल किया और आज हम सभी लोग, सभी दुनिया, हर एक लोग जो उसकी बादशाही से, उसकी उन बरक़ात से, उनकी उस मिरास से दूर हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी थी। बाग़ एदन जैसी मिरास आज भी हमारे पास है। अगर हम हकीकत में, सच्चाई में और उसकी मर्ज़ी में, उसकी रूहानी बेदारी में हम दाखिल हो जाएं, तो खुदा हमें ज़रूर उन मिरास से वाकिफ़ करेगा जो उसने हमें देने की वादा किया है। वो वादों का सच्चा खुदा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। हमें भी उसके वादों पर यकीन करने की ज़रूरत है। हम मसीह होते हुए इस बात पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगियों से कौन सी मसीहत जो है ना ज़ाहिर होनी चाहिए जिससे हम अपने यस्सु को खुश कर सकें। खुदा जो मेहरबान है, कुर्बान होकर जब आसमान पर गया तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा। उस मददगार को पहचानिएगा,
وہ مددگار جو ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہے وہ خدا کا روح القدس ہے۔ اگر ہم خدا کا روح القدس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں سے، ان تمام حرکات سے، ان تمام حالات سے دور ہونا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں منع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت میں ہمیں جو ہے نا آگے بڑھاتے ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا ہے۔ خدا کے روح کو اتنا جو ہے نا نہ ستائیں تاکہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمارے درمیان میں بیماریاں کیوں ہیں؟ ہمارے درمیان میں آج ہارٹ اٹیک کیوں ہے؟ ہمارے درمیان میں آج بلڈ پریشرز کی بیماری کیوں ہے؟ ہارٹ اٹیک کی بیماری، ہمارے درمیان میں ہڈیوں کی بیماری، ہمارے درمیان میں معدہ، لیور، ہر ایک چیز ہماری کیوں خراب ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس روح کو رنجیدہ کیا ہوا ہے۔ خدا کا روح جو ہمارے اندر موجود ہے وہ آج بھی ہمیں ہدایت و رہنمائی کر رہا ہے، آج بھی ہماری ہدایت رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج کا میسج جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو ضرور، بے شک میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں کو خدا کے نزدیک لے کر جانے کی جو ہے وہ اہمیت دے گا، تاکہ آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں اور خدا کی مرضی کو جانیں، اور اپنی زندگی کو ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے، سونے جاگنے سے پہلے آپ خدا کی مرضی کو جانیں، اس سے مانگیں کہ خدا تو ہم سے وہ باتیں کرتا ہے جس طرح وہ ازل سے آدم اور حوا کے ساتھ باتیں کرتا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے ہمیں پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں راست باز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں عبادت میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دعائیہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، وقت بہت نزدیک ہے، اس لیے اس کے پاس ہماری ہر ایک کام کا اجر، اس کے پاس ہماری ہر ایک حرکت کا اجر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کون سا اجر پائیں۔ ہمیں آج جو زندگی ملی ہے اس سے ظاہر کریں کہ یسوع، جو تو نے تکلیف میرے لیے صحیح ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو نے جو میرے بدن کو پاک کرنے کے لیے خون بہایا ہے، میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تیرے ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، میں اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے، اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ خدا تو میری زندگی سے خوش ہو سکے، کیونکہ یہ تو نے خلق کی ہے، اور جو چیز تو نے خلق کی ہے وہ بیکار نہیں ہو سکتی۔ ہم تیرے وعدوں پر یقین کر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج اور ابھی سے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے اور خدا کے نزدیک لے کے جائیں گے، تاکہ خدا جو ہمارا رہبر ہے، جو وفادار ہے، جس کی وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہے، وہ ہمیں جانے اور ہمیں ان چیزوں کا مالک بنائے جن کا اس نے ہم سے وعدہ کیا۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے حضور میں دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی تعلیمات کے پیروکار کر دے۔ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، لشکروں کے خدا، تمہارا ہراول اور چنڈاول خدا ہے۔ تمہاری زندگیوں کو جانتا ہے، جو گزر چکی ہے، جو زندگی ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، اور جو زندگی اور جو لمحے ہماری زندگیوں میں آنے والے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم تو سے دعا کرتے ہیں خداوند، اپنے کلام کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں پیوست کر دے، ہماری زندگیوں کو، ہمارے کانوں کو اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کو، آنکھوں کو سوچنے سمجھنے کو خداوند اپنی مرضی کے مطابق چلا۔ ہم اپنے ارادے نہیں، ہم اپنے منصوبے نہیں، بلکہ خداوند تیرے منصوبے اور تیرے ارادوں پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا ہماری زندگیوں کو چلا تاکہ ہم ان کی وہ وراثت میں آ جائیں جو خدا تو نے ہم سے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے، جرمیہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے خداوند دعائے خیر کرتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان کی زندگیوں سے خدا کا آدم ان تمام ابلیس قوت اور چالوں کو نکال کر خداوند اپنے ارادے اور منصوبوں کا، اپنی مرضی کو ڈال دے، تاکہ خداوند یہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، خداوند چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، خداوند تیری برکات سے مالا مال رہیں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے خداوند اپنی زندگیوں کو تیرے نزدیک لے کر آئیں، مسیح یسوع کے وسیلے سے آمین۔ God bless you all. Thank you. Once again, I am very thankful to the Jesus and after Dr. Emmanuel Tahir Sahab and Jeremiah TV and all team جس نے یہ موقع بخشا اپنے اس خدا کے خادم کو کہ اس کی زندہ آواز کو آپ تک پہنچا سکیں، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ ضرور آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہوگی۔ God bless you all. Thank you.